Hello students, today we are going to cover a chapter from class 11th Hornbill book, that's Silk Road. The Silk Road is an ancient road actually, uh, which is actually started from BC to 1600 something, but still some part of it's available, not the whole. As you can see in this image, this is the picture of Silk Road. See guys, I have shared a map also with you all. Like by this you will come to know how the path actually proceed the Silk Road. Like it started from the China, as you can see from here, and from China it moved to Asia, the Central Asia part like Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, and then it moved to Europe, that's Italy. Till Italy, you can see this red line is for Silk Road. Actually, in ancient time, people used this road for different trades and mostly for silk. That is why we have given the name Silk Road to this. And in this chapter, our writer is actually uh, travel through this part because he wants to go to Mount Kailash for Kora. Kora is a ritual process. We'll come to know. So for that, he actually passes through this road, and he in this chapter he actually shared his experience, what he experienced through this road. So let's start. A flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbyes. Perfect flawless half moon is like this. As we all are aware that there are different phases of moon. So it is one of them. हम सब जानते हैं चांद की बहुत सारे फेजेस होते हैं, कभी वो फुल मून होता है, कभी हाफ मून होता है. तो दिस इज हाफ मून ही इज सेइंग. और वो उस सुबह जो है सबको अलविदा कह रहे हैं. एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोव्स glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blush. फ्रेंच लॉब्स लाइक दिस, एक ब्रेड होती है सिंपली, और जो पीसेस में नहीं होती है. जैसे हमारे जो ब्रेड आता है वो पीसेस में होती है, ये पीसेस में नहीं होती है, उनका रेगुलर फूड है. और वो बता रहे हैं कि एक ऐसी सुबह है जैसे फ्रेंच लोव्स होता है ना, उसी की तरह ग्लोड पिंक, और ऐसा लग रहा है पहाड़ों के पीछे से, दूर से पहाड़ों के पीछे से जब सूरज निकल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही आभा, एक गुलाबी सी आभा छा छा गई है वहां पर. Now that we were leaving Ramu, Lamu said she wanted to give me a farewell present. हम जब रावू रावू एक जगह का नाम है जिसे छोड़ रहे थे, तो लामो लामो ने कहा कि वो हमें कुछ गिफ्ट करना चाहती है फेयरवेल पर, हमें हमसे अलग होते हुए हमारी विदाई में हमें कुछ देना चाहती है. One evening, I had told her through Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Kora, and she said that I ought to get some warmer clothes. एक शाम मैंने डैनियल के थ्रू उसे ये बताया था कि मैं माउंट कैलाश जा रहा हूँ अपना कोरा कंप्लीट करने के लिए. कोरा इज अ रिचुअल प्रोसेस गाइस, इन विच एक्चुअली यू हैव टू यू विल टेक अ राउंड, अ कंप्लीट राउंड ऑफ माउंट कैलाश. कोरा एक धार्मिक प्रोसेस है जिसमें हम माउंट कैलाश का चक्कर लगाते हैं. तो राइटर ये बता रहे हैं कि एक शाम उन्होंने डैनियल के थ्रू शायद उनको बताया था. She said that I ought to get some warmer clothes. उसने कहा कि मुझे कुछ गर्म कपड़े लेने चाहिए. After ducking back into her tent, जब टेंट में ना कपड़े के दरवाजे होते हैं, उससे अंदर और बाहर जाते हैं, तो उसको डकिंग बैक कहा है उन्होंने. She emerged carrying one of the long sleeve sheepskin coats that all the men wore. वो बाहर प्रकट हुई, इमर्ज का मतलब प्रकट हुई, बाहर निकली एक लॉन्ग स्लीव कोट के साथ जो शीप स्किन से बना हुआ था. शीप स्किन मतलब देखो, जो भेड़े होती हैं उसका जो स्किन यानी कि जो फर होता है ऊपर का, वो निकाला जाता है और उससे गर्म कपड़े बनाए जाते हैं जो वहाँ बहुत सारे आदमी पहनते हैं. Seaton sized me up as we clambered into his car.
Seaton size me up is a phrase like कि उसने आंखों से ही तोल लेना, आंखों से ही उसके साइज को मापना। तो सीतन ने देखा जब मैं उसकी कार में चढ़ रहा था। यस ही डिक्लेयर्ड ड्रॉपर सर। ओ वाह, उसने मुझे ड्रॉपर डिक्लेयर किया। ड्रॉपर वहाँ की लोकल लैंग्वेज में शेफर्ड्स को कहते हैं। We took a shortcut to get off the Changting. हमने चैंगटिंग के लिए एक शॉर्टकट लिया। सीतन knew a route that would take us southwest. सीतन को एक रूट पता था जो हमें साउथ वेस्ट में ले जाएगा, ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश। बिल्कुल सीधा, लगभग सीधा माउंट कैलाश की तरफ ले जाएगा। He involved crossing several fairly high mountain passes. और इसमें हम बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को क्रॉस करेंगे इस पास के थ्रू। He said, but no problem, sir. He assured us, if there is no snow, what was the likelihood of that? I asked, not knowing, sir, until we get there. उसने कहा कि अगर वहाँ बर्फ नहीं होगी, तो उसने हमें श्योर किया, हमें निश्चिंत किया कि अगर वहाँ बर्फ नहीं होगी तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। जब मैंने पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ, तो उसने कहा कि बस जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते मैं कुछ नहीं कह सकता। From the gently rolling hills of Ravu. रावू की gently rolling hills मतलब जो hills की जो rolling मतलब जो पहाड़ होते हैं वो कभी कभी बहुत steep होते हैं और कभी कभी थोड़े से gentle smooth टाइप के होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो इस इमेज में आप देख पा रहे हो ना कि इस हिल्स पर जो पहाड़ है वो बहुत ज़्यादा steep नहीं है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाले नहीं है। steep जो होता है वो सीधा इस तरीके का होता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो ना इस तरह का होता है, लेकिन ये कैसे है, ये इस तरह के पहाड़ है। और स्टीप होता है तो वो सीधे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव वाला होता है। तो ये स्टीप पहाड़ नहीं है, वो बता रहे हैं कि ये ना थोड़े से इस तरह के हैं कि आराम से चला जा सकता है। The shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelles that would look up from nibbling the arid pasture and frown before bounding away into the void. गैजल्स क्या है? गैजल्स एक एनिमल है जो कुछ इस तरह से दिखता है जैसे आप इमेज में देख रहे हो। और जब हम वहां से गुजर रहे थे वो बता रहे हैं कि उन बड़े बड़े मैदानों के आसपास कुछ भी नहीं था, वहां कोई भी नहीं था, बस थोड़े से गैजल, कुछ गैजल्स वहां पर थे। और उनको हमने कैसे क्या करते हुए देखा? निबलिंग मतलब छोटे छोटे बाइट ले रहे थे, एरिड मतलब ड्राई, पैस्चर मतलब घास के मैदान में वो सूखी घास के एक तरीके से थोड़ा थोड़ा खा रहे थे। एंड फ्रॉन बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड। और जैसे ही मतलब आसपास जाए उससे पहले ही वो वॉइड, यानी वॉइड का मतलब होता है जहाँ कुछ नहीं हो वहां खो जाते थे। फर्दर ऑन वेयर द प्लेन्स बिकम मोर स्टोनी देन ग्रासी। और आगे जब जो प्लेन था, मैदान था, वो घास के बजाय पथरीला हो गया। अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इनटू व्यू। एक बहुत बड़ा गधों का झुंड हमें नजर आने लगा। Seaton told us we were approaching them long before they appeared. सीटन ने हमें बताया कि उन्हें कि वो जितनी दूर दिख रहे उससे वो उससे जल्दी हम उन तक पहुंच जाएंगे, मतलब जितनी जल्दी हम उन तक पहुंच जाएंगे उतनी दूर वो दिख नहीं रहे हैं। क्यांग मतलब उनको लोकल लैंग्वेज में, उनके यहाँ की लैंग्वेज में क्यांग कहते हैं। ये क्यांग मतलब उनका कहने का मतलब है कि ये जितनी दूर हमें दिख रहे हैं इतनी दूर है नहीं, और इनको हम क्यांग कहते हैं। As hills started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary dogmas tending their flocks. As hills started to push up once more from the rocky wilderness, वो बता रहे हैं कि जिस तरह से ना ये हिल्स पीछे की ओर, ये जो चट्टाने हैं पास हो रही हैं। वी पास सॉलिटरी ड्रॉप पास, हम किनको पास कर रहे हैं? सॉलिटरी मतलब आइसोलेटेड, अलग हो चुके हैं, मतलब एक तरह से अलगाव में। तो इन द्रोगबाज, द्रोगबाज किनको बोला है उन्होंने? द्रोगबाज वहाँ के शेफर्ड्स को बोलते हैं, अभी हमने पहले भी पढ़ा था। टेंडिंग टू द टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, फ्लॉक्स मतलब झुंड, अपने जो जो भी वो चरा रहे जानवरों के, उनके झुंड को लेकर हाँ वो चल रहे, तो उनको पास कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। सम टाइम मैन, सम टाइम वुमेन, कभी कभी आदमी, कभी कभी औरतें। दीज वेल रैप फिगर्स
वेल ड्राइव फिगर्स क्यों कहा गया, क्योंकि ठंड बहुत है तो उन्होंने अच्छे से अपने आप को कवर कर रखा है, वो बता रहे हैं। वुड पॉज एंड स्टेयर एट आवर कार, वो कभी कभी रुक रहे हैं और हमारी कार को स्टेयर मतलब घूर रहे हैं। ओकेजनली वेविंग एज वी पास्ट, और कभी कभी वो हमें ना हाथ भी हिला रहे हैं, जैसे कभी कभी हम दूसरे को निकलते हैं तो एक दूसरे का अभिवादन करते हैं तो हवा में हाथ हिलाते हैं, उस तरह से वेव कर रहे हैं। When the track took up close to their animals, the sheep would take evasive action veering away from the speeding vehicle. जब हम उस ट्रैक पर उनके पास से गुजर रहे हैं, उनके एनिमल्स उनके जानवरों के पास से निकल रहे हैं जो कि शीप हैं, भेड़ें हैं, तो वो इवेसिव, इवेसिव का मतलब होता है किसी चीज को अवॉइड करने के लिए जो एक्शन आप ले रहे हैं। वेयरिंग मतलब अचानक से आप दूसरे डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं, तो बचने के लिए जैसे ना वो दूसरी तरफ एकदम से डायरेक्शन ले लेते हैं, दूसरी दिशा में मूव कर लेते हैं, दूसरी दिशा में चले जाते हैं अपने जो तेजी से आ रहे वाहन है उनसे बचने के लिए। We passed Nomad's dark tent pitched in splendid isolation. We passed Nomad. Nomad का मतलब होता है एक तरीके से बंजारे जैसे लोग होते हैं ना, कि कभी कहीं रहे कुछ समय के लिए फिर कहीं रहे, तो वो एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं, वो जगह जगह घूमते रहते हैं। They move place to place. तो हमने वहां से जहां से हम गुजर रहे थे वहां से नोमैड्स के डार्क टेंट्स, मतलब जो उन्होंने काले काले गहरे रंग के टेंट्स बनाए हुए थे जिसमें वो रहते थे, स्प्लेंडेड आइसोलेशन मतलब बहुत बड़े फैले हुए मैदानों में अकेले वो आइसोलेटेड फॉर्म में रहते हैं, वो ज्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं है, ये वो बता रहे हैं। यूजली विद अ ह्यूज ब्लैक डॉग, और ज्यादा करके ना वो बड़े से ब्लैक डॉग के साथ रहते हैं। अ टिबेटन मैस्टिफ स्टैंडर्ड गार्ड। तिब्बतन मैस्टिफ मतलब ये मैस्टिफ एक जाति है डॉग्स की, जो बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े होते हैं, कुछ इस तरह से जैसे आपने इमेज में देख रहे हैं। और ये ना वहाँ पर गार्ड्स का काम करते हैं, क्योंकि वो अकेले रहते हैं तो इस तरह से वो जानवरों से सबसे उनकी रक्षा करते हैं। दीज बीट्स, बीस्ट उन्होंने क्यों कहा इनको, क्योंकि ये दिखने में बड़े भयानक दिखते हैं, इसीलिए इन्होंने राइटर ने इन डॉग्स को बीस्ट कहा है। दैट वुड टेक that would cock their great big heads when they become aware of our approach and fix us in their sight. और ये ऐसे हैं इतने खतरनाक कि सीधे अपना जो सर है वो बता रहे हैं राइटर कि उसी तरफ मोड़ लेते हैं, और एकदम जिस तरफ से हम आ रहे होते हैं, जिस तरफ से कोई आ रहा होता है उस तरफ सर कर लेते हैं, और आंख से ओझल नहीं होने देते हमें, मतलब अपनी साइट, साइट का मतलब होता है जो दिखने का व्यू होता है, उस व्यू को वही फिक्स कर लेते हैं जहाँ पर हम दिखते हैं उनको, तो वो किसी भी आगंतुक के आने पर उस पर अपनी साइट को, अपनी नजर को फिक्स कर लेते हैं। एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर, और जैसे ही जैसे हम उनके पास जा रहे थे, एज वी कंटिन्यू जब हम उनके पास जा रहे थे, दे वुड एक्सप्लोड इन टू एक्शन। एक्सप्लोड का मतलब होता है विस्फोट, तो वो एकदम से ना एक्शन में आ जाते हैं, स्पीडिंग डायरेक्टली टूवर्ड अस, और तेजी से हमारी तरफ से आते हैं। लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन एंड नियरली एज फास्ट, जैसे कि एक ना गन से एक मतलब बंदूक से एक गोली निकलती जितनी फास्ट, उतनी तेजी से हमारी तरफ आते हैं। These shaggy monsters, shaggy क्यों कहा, क्योंकि उनके ऊपर ना बहुत सारे बाल होते हैं। मॉन्स्टर हम कहते हैं जनरली राक्षसों को, बट हेयर यहाँ पर ना वो बहुत भयानक दिख रहे हैं इसलिए वो मॉन्स्टर इनको बोल रहे हैं। ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, और वो उतने ज्यादा काले हैं जैसे काली रात होती है उससे भी ज्यादा काले। यूजली वॉर ब्राइट रेड कलर्स, यूजली वॉर ब्राइट रेड कलर्स मतलब इस तरह के ना वो ब्राइट रेड कलर के पट्टे पहने रहते हैं, तो वही हमारी राइटर हमको बता रहे हैं। रेड कलर एंड bark furiously with massive jaws, massive मतलब बहुत भयानक से उनके जबड़े हैं, उससे वो बहुत बुरी तरह से भौंक रहे हैं। they were completely fearless of our vehicle, और वो हमारे व्हीकल से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा था कि अभी उन्होंने बताया था कि जो भेड़े हैं वो डर कर एक तरफ हो जाती है, मगर ये नहीं होते, इनको कोई डर नहीं है। शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ, और सीधे हमारे रास्ते में आ जाते हैं, causing सीता टू ब्रेक एंड स्वेर, और इस वजह से क्योंकि अचानक वो दौड़ते हुए हमारे व्हीकल के सामने आ जाते हैं तो सीतन को ब्रेक लगाना पड़ता है और गाड़ी को उन्हें बचाने के लिए दूसरी डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है। The dog would make chase for 100 meters or so before easing off, having seen us off the property.
और डॉग जो है वो कितनी दूर तक, 100 मीटर तक वो, या उससे भी ज्यादा, जहां तक वो आराम से दौड़ सकते हैं, वो हमारे पीछे दौड़ते हैं। तब कब तक दौड़ते हैं? जब तक कि हम उनकी प्रॉपर्टी से, उनके एरिया से बाहर नहीं निकल जाते। It wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan Mastiffs become popular in China's imperial courts as hunting dogs. और अब ये समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों वो चाइना की जो इंपीरियल शाही कोर्ट्स होते थे उसमें वो हंटिंग डॉग की तरह ये तिब्बतन मैस्टिफ्स काम करते थे, पॉपुलर थे यानी प्रसिद्ध थे। ब्रॉट अलोंग द सिल्क रोड इन एंशिएंट टाइम एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत। और यहाँ सिल्क रोड पर, प्राचीन काल में यहाँ सिल्क रोड पर लाए जाते थे तिब्बत से। By now we could see snow-capped mountains gathering on the horizon. अब वो बता रहे हैं कि अब जो है हम गुजर रहे हैं कहाँ से, वी कुड सी, हम देख पा रहे हैं माउंटेन्स को, पहाड़ों को जो बर्फ से ढके हुए हैं। गैदरिंग ऑन द हॉरिजन मतलब मैदान पर एक साथ इकट्ठा है, ऐसे ऐसे माउंटेन्स इकट्ठा हैं हमें अब दिख रहे हैं जिन पर बर्फ जमी है, बहुत सारी बर्फ से ढके हुए हैं। वी एंटर द वैली। वैली का मतलब होता है घाटी। घाटी यानी कि जो जगह चारों तरफ से ना पहाड़ों से घिरी हो, उसके बीच की जगह को हम घाटी कहते हैं। Where the river was wide and mostly clogged with ice, brilliant white and glinting in the sunshine. हम एक घाटी से गुजर रहे हैं जहाँ एक नदी है जो बहुत चौड़ी है और काफी तरह क्लॉग, क्लॉग यानी कि जमी हुई है, बर्फ जमी है वहां पर। तो क्लॉगिंग कैसे होती है? जैसे नाली या क्लॉग हो जाती है घर में ना, वो फंस जाती है तो अवरोध होता है, आगे पानी नहीं निकल पाता। ब्रिलियंट वाइट मतलब बिल्कुल सफेद है क्योंकि बर्फ है वहां पर जमी हुई, और ग्लिंटिंग और चमक रही है, धूप में ना चमक रही है। द ट्रेल हक्ड इट्स बैक। और ट्रेल मतलब बोलते हैं कि जो लाइन से एक पाथ बन रहा होता है तो वो उसके किनारों को ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेल ना उसके रास्ता जो है उसके साथ साथ चल रहा है। Twisting with the menders as we gradually gained height and the valley sides closed in. और जैसे जैसे हम हाइट की तरफ बढ़ रहे हैं वो बता रहे हैं और घाटी खत्म हो रही है, वहां से ना ये ट्विस्टिंग विद द मेंडर्स, मेंडर्स मतलब इसको कहते हैं, जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो ना, इस तरह से ट्विस्ट करते हुए, घुमावदार इधर उधर मुड़ती हुई, इसको मेंडर्स कहते हैं। तो वो नदी भी हमारे साथ चल रही है। द टर्न बिकेम शार्पर एंड द राइड बम्पियर। अब जो टर्न्स है ना वो बहुत शार्प यानी कि बड़े घुमावदार जगह से हम गुजर रहे हैं, और बम्पियर मतलब उछल उछल के, जहाँ पर मतलब अवरोध भी है, वो जहाँ से वो गुजर रहे हैं वो प्लेन एकदम स्मूथ नहीं है वो रास्ता, तो बम्प कर रहा है, मतलब गाड़ी भी काफी झटके ले रही है। और सीटेड नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम। और अब चढ़ने के लिए ना उसको ज्यादा ताकत जरूरत है, तो वो थर्ड गियर में गाड़ी को चला रहा है। थर्ड गियर मतलब अब वो ज्यादा ताकत लगाएगा क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए उनको ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। द ट्रैक मूव अवे फ्रॉम द आईसी रिवर। अब इस जो नदी के पास से वो गुजर रहे थे, इस बर्फीली नदी से ट्रैक मूव अवे यानी कि हमारा रास्ता अब दूर जा रहा था। Laboring through steeper slopes that spotted big rocks dumped with patches of bright orange lichen. लेचिन, ब्राइट ऑरेंज लेचिन मतलब छोटे छोटे ना वो पैचेस होते हैं ऑरेंज कलर के, एक तरह के, जब आप बीच बीच में देखोगे तो उसको लेचिन्स कहते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो रहा था, उस नदी से वो दूर जा रहे थे और स्टीपर स्लोप्स, इस तरह के स्लोप्स आ गए थे जो स्टीप थे बहुत ज्यादा, और दैट स्पॉटेड बिग रॉक्स डब्ड विद पैचेस ऑफ, और बड़ी बड़ी रॉक्स थी वहां पर जिन पर ऑरेंज लेचेस थे। Beneath the rocks some so snow clung on in air permanent shade. मतलब वहां पर बहुत सारे बर्फ जमा हुआ था। beneath the rock चट्टानों के नीचे भी जमी हुई थी, और क्लंग वहां पर स्नो क्लंग्स थे। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स। और जब आप ऊंचाई पर जाते हो तो आपको पता है कि ना प्रेशर डेवलप होता है, कभी कभी हम ये महसूस करते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अब राइटर वही बता रहे हैं यहाँ पर कि वो भी प्रेशर को महसूस कर रहे थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को महसूस कर रहे थे। हेल्ड इन माई नोज स्नॉटेड एंड क्लियर्ड देम। और मेरी नाक में भी स्नोरिंग मतलब जैसे एक होता है ना खराटे लेते तो उस तरह की आवाज थी, एंड क्लियर देम, और उसको क्लियर किया उन्होंने। We struggled round another tight bend and sit and stop. और फिर से जब एक टाइट बेंड यानी कि घुमाव आया, तेजी सा घुमाव आया एकदम स्ट्रेट सा, तो सीता ने गाड़ी रोक दी।
He had opened his door and jumped out of his seat before I realized what was going on. और जब तक मैं महसूस कर पाता, जब तक मैं समझ पाता, उससे पहले वो दरवाजा खोल के तेजी से जंप करके बाहर चला गया अपनी सीट से. Snow, said Daniel as he too exited the vehicle, letting in a breath of cold air as he did so. बर्फ. डेनियल ने डेनियल ने भी गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहा, बर्फ. और जैसे ही वो बाहर निकला, अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया जो मैंने अपनी सांसों के साथ महसूस किया. ऐसा राइटर बता रहे हैं. A sweaty of the white stuff lay across the track in front of us, stretching for maybe 15 meters before it petered out and the dirt trail. अब स्वेते मतलब एक कोई एरिया किसी चीज का, तो वाइट स्टफ इन्होंने बोला है यहाँ पर बर्फ को. बर्फ से ढका हुआ एरिया हमारे ट्रैक के साथ था, हमारे ट्रैक के सामने था. और स्ट्रेचिंग मतलब वो कह रहे हैं कि फैला हुआ था, कम से कम 15 मीटर्स तक फैला हुआ था. और उसके आगे डर्ट की यानी कि मिट्टी की ट्रेल थी. ट्रेल मतलब रास्ता दोबारा दिख रहा था. The snow continued on either side of us, smoothing the abrupt bank on the upslope side. जो स्नो थी, जो बर्फ थी, वो हमारे रास्ते के दोनों तरफ थी. और स्मूथिंग द एब्रप्ट बैंक, और जो एब्रप्ट मतलब ऊंचे नीचे जो बैंक यानी किनारे थे, उनको स्मूथ कर रही थी. ऊपर की तरफ जो स्लोप पे हम चढ़ रहे थे उसको स्मूथ कर रही थी. द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर अ व्हीकल टू स्केल. स्केल मतलब वहाँ जो बैंक थे, जो किनारे थे उस रास्ते के जहाँ पर वो व्हीकल को हमारे चलाना था, वो बहुत स्टीप थे, तो बड़ा डिफिकल्ट था उसको चढ़ने के लिए, व्हीकल को ऊपर चढ़ने के लिए. सो वहां पर इस स्नो पैक, जो ये जितना स्नो का एरिया था, जितना बर्फ का एरिया था, वहां से आगे जाना बड़ा ही मुश्किल काम था. देयर वाज नो वे राउंड द स्नो पैच, और कोई रास्ता नहीं था वहां से आगे जाने का. I joined Daniel as he stepped onto the encrusted snow and began to slither and slide forward. अब मैंने भी डैनियल को ज्वाइन किया. जैसे कि सीता जो था वो बाहर आया, स्टीप डाउन टू द एनक्रस्टेड स्नो. एनक्रस्टेड का मतलब होता है एक हार्ड, मतलब स्नो जो है ना अब वहां पर बहुत हार्ड हो गई. और आपको पता है जैसे बर्फ से हम क्यूब्स निकाले या बड़े बड़े जो आइस ब्लॉक्स होते हैं, उसको आपने देखा होगा कि उसके ऊपर आप हाथ रखो या चलने की कोशिश करो तो आप स्लिप होते हो. तो ये स्नो भी जो है ना वो बहुत ज्यादा हार्ड हो गई है, वो बता रहे हैं. एंड बिगिन टू स्लिथर एंड स्लाइड, मतलब वहां पर फिसलने लगे हैं, वहां पर स्लाइड कर सकते हैं. Stamping his foot from time to time to ascertain how sturdy it. और सीतन जो है ना बार बार पैर बाहर निकल कर ये जानने की कोशिश कर रहा है अपने पैर से उसको मार मार कर कि ये कितनी हार्ड है. आई लुक्ड एट माई रिस्ट वॉच, और मैंने अपनी रिस्ट वॉच, अपनी कलाई घड़ी की तरफ देखा. वी वर एट 5210 meters above sea level. हम लोग सी लेवल से 5210 मीटर की ऊंचाई पर थे. The snow didn't look too deep to me. जो बर्फ थी वो मुझे बहुत गहरी नहीं लग रही थी. राइटर ऐसा बता रहे हैं कि उनको बहुत गहरा नहीं लग रहा था. But the danger wasn't its depth, Daniel said, so much as its icy top layer. अब वो डेनियल जो है ना उनको बता रहे हैं कि ये इसका गहराई, जो बर्फ की गहराई है, वो हमारे लिए कोई डेंजर, कोई खतरा नहीं है. बल्कि ये जो आईसी टॉप यानी कि बर्फ की जो ये टॉप लेयर है, जो सबसे ऊपरी परत है, ये ज्यादा खतरनाक है. इफ वी स्लिप अप, अगर हम स्लिप हो गए, द कार कुड टर्न ओवर, जो कार है वो पलट सकती है. ही सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया. As we saw Sitan grab handful of dirt and fling them across the frozen surface. तो हमने देखा कि सीतान ने मुट्ठी में ढेर सारी जो मिट्टी ली है, डर्ट ली है, और फ्लिंग यानी उड़ा रहा है, वो उड़ा रहा है उस फ्रोजन सरफेस यानी कि जमी हुई जो सरफेस है उसके ऊपर वो उड़ा रहा है. उसे उड़ा क्यों रहे, जिससे कि मिट्टी आ जाए और वो थोड़ा स्लिपरी कम हो जाए. We both patched in, and when the snow was spread with soil, अब हम दोनों ने भी ना, डैनियल और राइटर ने भी उसको ज्वाइन किया और उन्होंने भी स्नो के ऊपर सॉइल फैलाना शुरू किया. डैनियल एंड आई स्ट्रे आउट ऑफ द व्हीकल टू लाइटन सीट एंड लोड. और मैं और डैनियल व्हीकल के बाहर आ गए जिससे वजन थोड़ा कम हो जाए.
He backed up and drove towards the dirty snow. वो थोड़ा पीछे आया और उसने ड्राइव करना शुरू किया डर्टी स्नो के ऊपर. Ease the car onto its icy surface and slowly drove its length without apparent difficulty. और जो बर्फ की सरफेस थी उस पर धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू किया बिना किसी परेशानी के. 10 minutes later, 10 मिनट बाद, we stopped at another blockage और हम फिर से एक ब्लॉकेज यानी कि अवरोध के सामने रुके. Not good, sir, Sitan announced as he jumped out again to survey the scene. जब सीतान वापस बाहर आया जंप करके और उसने जो सीन यानी चित्र को जो भी उसको व्यू दिख रहा था उसको दोबारा से सर्वे किया, देखा तो उसने कहा ये अच्छा नहीं है. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो. और इस बार उसने डिसाइड किया, निश्चय लिया कि वो कोशिश करेगा स्नो के स्नो के साथ ही ड्राइव करने का. The slope was steep and studded with major rocks, but somehow Sita negotiated them, his four-wheel drive vehicle lurching from one obstacle to the next. और इस बार जो था ना जो सीता ने उसने अपने फोर व्हील व्हीकल से इस स्लोप को क्रॉस किया जो कि ना बहुत ये स्लोप स्टीप भी था और स्टडेड भी था. जैसा आप चित्र में देख रहे हो ना स्टीप है एकदम और स्टडेड भी है और बड़ी बड़ी रॉक्स यानी चट्टाने थी. लेकिन सीता ने इस बार नेगोशिएट किया मतलब इस बार उसने इस पर गाड़ी को आराम से लर्चिंग का मतलब होता है जिससे चिपक कर चलना जिससे धीरे धीरे आगे बढ़ते ना क्रीप करते हुए. इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयरपिन बैंड. और ये सब करते हुए उसने एक हेयरपिन बैंड कहा जाता है इस तरह के ट्रांस को. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर इसको हेयरपिन बोलते हैं क्योंकि आप देखो कि जो गाड़ी इधर से आ रही है उसको पता भी नहीं होगा कि इधर से कौन सी गाड़ी है और इधर से आने वाली कार को या गाड़ी को नहीं पता होगा कि यहाँ से कौन सी. तो इट्स वेरी टफ टर्न्स. तो उसने एक हेयरपिन बैंड को भी क्रॉस किया ऐसा राइटर बता रहे हैं. Regaining the trail further up where the snow had not drifted. और आगे की ओर बढ़ते हुए जहां पर स्नो से हम बच नहीं पा रहे थे. I checked my watch again as we continued to climb in the bright sunshine. मैंने अपनी घड़ी को फिर से देखा क्योंकि हम धूप में आगे बढ़ रहे थे. We crept past 5,400 meters. हमने क्रेप्ट करते हुए मतलब रेंगते हुए एक तरीके से 5,400 मीटर को क्रॉस किया एंड माई हैड बिगन टू थ्रॉप हॉरिबली. थ्रॉप का मतलब होता है जैसे ना कभी कभी हमें लगता है ना सर में इतना दर्द है कि 1 घंटा समझ रहे हैं कि मतलब दर्द होता है फिर रुकता है फिर दर्द होता है. तो उसको उन्होंने थ्रॉप कहा है कि मेरा सर ना फिर से वैसे ही दर्द होने लगा था कि एक दर्द आ रहा था जा रहा था लेकिन अब परेशानी उनको हो रही थी. आई टुक गल्प्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल. मैंने अपनी वाटर बॉटल से कुछ घूंट लिए पानी के. गल्प बोलते हैं घूंट को. विच इज सपोज टू हेल्प अ रैपिड एसिड. जो कि लगता था कि एक तेजी से मुझे बचाएगा या तेजी से मुझे बेटर करेगा मेरी सिचुएशन को. उनको लग रहा था कि उनके सर के दर्द में थोड़ा आराम मिलेगा इसीलिए उन्होंने पानी पिया. We finally reached the top of the pass at 5,515 meters. और अब फाइनली हम पहुंच गए थे टॉप पर उस पास के टॉप पर उसके ऊंचाई पर जहां पर हम 5,515 मीटर ऊंची जगह पर फाइनली हम पहुंच गए थे. It was marked by a large cairn of rocks festooned with white silk scarves and red prayer flags. अब वो बता रहे हैं कि ये जगह जो है ना वो सजी हुई थी. कैरन मतलब जब एक के ऊपर ना एक पत्थर इस तरह से रखते हैं वो कैरन इस तरह का एक होता है कि पत्थर होते हैं सजाते हैं उसको पत्थरों से एक के ऊपर एक पत्थर रखते जाते हैं इस तरीके से और वहाँ पत्थरों से और फ्लैग से क्योंकि जो बौद्ध बौद्ध कम्युनिटी होता है वो वहाँ पर मॉन्स्ट्री के पास ना उन फ्लैग्स पर प्रेयर लिखते हैं और उन फ्लैग से उस जगह को सजाते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर ना इमेज में यू कैन सी. और पत्थरों से भी सजाते हैं. पत्थरों को एक के ऊपर एक रख के उस तरह से सजाते हैं तो उसको कैन बोलते हैं. ऑफ रॉक्स यानी कि छोटे छोटे पत्थरों के कैन बनाते हैं. एंड वाइट सिल्क स्कार्फ्स एंड रैक प्रेयर फ्लैग्स. और वाइट फ्लैग्स लगाते हैं सिल्क
के कपड़े के, और कुछ प्रेयर फ्लैग्स भी लगाते हैं, मतलब छोटे छोटे फ्लैग्स होते हैं जिन पर प्रेयर्स लिखी होती है। We all took a turn round the cairn. हम सब ने उन कैरन के चारों तरफ चक्कर लगाए in a clockwise direction as in the tradition, and Seaton checked the tires on his vehicle. हमने उनके चारों तरफ चक्कर लगाए कैरन के, जो कि और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाए, जो कि एक प्रथा है, और सीता ने अपने व्हीकल के टायर को चेक किया। टायर को चेक क्यों किया होगा? क्योंकि टायर को वहां पर चल रहे थे, इस तरह के पथरीले रास्ते में वो चल रहे थे, तो ये उनको कोई नुकसान न हुआ, क्योंकि अगर टायर में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आगे गाड़ी को नुकसान हो सकता है, इसीलिए उसने गाड़ी को चेक किया। He stopped at the petrol tank and partially unscrewed the top, which emitted a loud hiss. वो एक पेट्रोल पंप पर रुका और उसने आगे का जो है ना वो थोड़ा सा खोला, पार्शली मतलब आधा ही जो है आगे का टॉप जो है खोला, जिससे एक हिस का जो एक साउंड आया। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज अलाउइंग द फ्यूल टू एक्सपेंड। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो लो था, इसी वजह से जो पेट्रोल है वो एक्सपेंड कर रहा था, और उसकी वजह से जब जैसे उसने उसको खोला तो एक हिस का साउंड आया। इट्स साउंड, वो जो आगे ना पेट्रोल के लिए टैंक खोलते हैं, तो इट साउंडेड डेंजरस टू मी, मे बी सर, सीता लव बट नो स्मोकिंग। अब उसने कहा कि हो सकता है सर, आपको ये ना राइटर कह रहे कि मुझे बहुत खतरनाक लगा, मुझे बहुत डेंजरस लगा, पर सीता ने कहा मे बी सर, हो सकता है, और वो हंसा और उसने कहा नो स्मोकिंग। My headache soon cleared as we carried down the side of the pass. अब वो बता रहे हैं कि मेरा जो सर दर्द था ना वो भी धीरे धीरे क्लियर हो गया था, वो भी धीरे धीरे दूर हो रहा था, क्योंकि हम वी केयर डाउन द साइड ऑफ द पास। अब हम क्योंकि ना उस पास के डाउन साइड में जा रहे थे, पहले ऊपर जा रहे थे अब नीचे जा रहे थे, तो अब मेरा सर दर्द भी कम हो रहा था। वी एट हॉट नूडल्स इनसाइड अ लॉन्ग कैनवस टेंट। हमने गरम गरम नूडल्स खाए लॉन्ग कैनवस टेंट, ये होता है कैनवस टेंट जो आप देख रहे हो, ये कैनवस टेंट होता है, इसके अंदर हमने, वो कह रहे हैं कि गरम गरम नूडल्स खाए। पार्ट ऑफ अ वर्क कैंप इरेक्टेड बिसाइड्स अ ड्राई सॉल्ट लेक, जो कि एक हिस्सा था वर्क कैंप का, जो एक ड्राई सॉल्ट लेक यानी सूखी हुई नमकीन झील के पीछे का हिस्सा था, में एक वर्क कैंप बना हुआ था, उसका हिस्सा था ये। The plateau is pockmarked with salt flats and brackish lakes, vestige of the Tethys Ocean, which bordered Tibet before the great continental collision that lifted it skyward. अब ये बता रहे हैं द प्लेटू, प्लेटू बोलते हैं एक इस तरह की जगह को, जो आप चित्र में ये इमेज में आप देख सकते हो, जो अपने बाकी की सराउंडिंग से थोड़ी ऊंचाई पर उठ जाता है, तो उसको हम प्लेटू बोलते हैं। ये प्लेटू कैसे बना था? सॉल्ट विथ सॉल्ट फ्लैट्स एंड ब्रेकिश लेक्स, मतलब जो नमक के छोटे छोटे ब्लॉक्स बन गए थे, और ब्रेकिश लेक्स जो एक्चुअली एक चेतस ओशन में बहुत प्राचीन समय में, बहुत समय पहले ना एक कॉन्टिनेंटल कोलिजन, मतलब कॉन्टिनेंट्स का एक टकराव हुआ था बहुत समय पहले, प्राचीन समय में चेतस ओशन में, तो तब ये बॉर्डर पर बन गया था, तब इस तरह की झीलें और इस तरह की नमकीन झीलें, वो कहना चाह रहे हैं, बन गई थी वहां पर। सूखी और नमकीन झीलें जो थी, नमक से भरी हुई झीलें वहां पर बन गई थी, और जो कॉन्टिनेंटल का हिस्सा था वो ऊपर की तरफ बढ़ गया था, यानी कि प्लेटू बन गया था। This war, this one was a hive of activity, men with pickaxe and shovel chugging back and forth in their long sheepskin coats. अब वो बता रहे हैं दिस वन वाज अ हाइव ऑफ एक्टिविटी, हाइव मतलब छत्ते को कहते हैं, कि ये जो था ना एक एक्टिविटी का हाइव था, जहाँ पर बहुत सारे लोग पिकेक्स यानी कि इस तरह के टूल से खोद रहे थे पत्थर को, मतलब पहाड़ों को, बर्फ को तोड़ रहे थे, एंड शॉवल trudging back and forth in their long sheepskin coat, और उन्होंने लॉन्ग स्किन कोट्स पहने थे, सॉल्ट इनक्रस्टेड बूट्स, यानी कि सॉल्ट से ना खराब हो चुके, जल्दी खराब हो चुके लेदर बूट्स जो इस तरीके के होते हैं वो पहने हुए थे, और वो शॉवल मतलब ये इस तरह का एक टूल होता है जिससे बर्फ को उठा सकते हैं, मतलब इससे खोदते हैं और फिर एक्स्ट्रा बर्फ को वहां से हटाने के लिए शॉवल का यूज करते हैं।
All wore sunglasses against the glare as a steady stream of blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt. और सभी ने सनग्लासेस पहने हुए थे उस चमक से बचने के लिए जो नीले ट्रक वहां से जब आ रहे थे तो वाइट लेक के ऊपर क्योंकि नमक के ढेर पाइल्स ऑफ सॉल्ट यानी कि नमक के जो ढेर रखे हुए थे उसकी वजह से जो चमक आ रही थी उससे बचने के लिए सभी ने चश्मे पहने हुए थे ऐसा वो बता रहे हैं. By late afternoon, we had reached the small town of Hor, back on the main east-west highway that followed the old trade route from Lhasa to Kashmir. और देर दोपहर के बाद मतलब दोपहर खत्म जब हो रही थी तब हम कहाँ पहुंच गए. होर जो एक स्मॉल टाउन था वहां पहुंच गए. बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे के पीछे जो जा रहा था ओल्ड ट्रेड रूट मतलब पुराने व्यापारिक रास्ते जो कि लहासा से कश्मीर का था उसके लहासा से कश्मीर को था वहां जा रहे थे. डेनियल हु वाज रिटर्निंग टू लहासा डेनियल जो लहासा लौट रहा था वो अब उसने ना फाउंड अ राइड इन अ ट्रक सो सीतान एंड आई बेड हिम फेवल आउटसाइड अ टायर रिपेयर शॉप. और क्योंकि वो वापस लौट रहा था तो मैंने और सीतान ने उसको डेनियल को अलविदा कहा एक टायर रिपेयर शॉप के बाहर से. We had suffered two punctures in quite succession on the drive down from the Salt Lake, and Seaton was eager to have them fixed since they left him with no spares. अब हम क्या थे हम ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे परेशान थे दो पंक्चर्स से जो बहुत ज़्यादा सक्सेशन की वजह से ड्राइव करते वक्त हो गए थे. जब हम सॉल्ट लेक यानी कि जो नमकीन झीलें थी वहाँ से उतर रहे थे तो सीता ना बहुत एगर था उत्सुक था उनको ठीक करा देने के लिए क्योंकि उसके पास अब कोई भी स्टेपनी स्पेयर व्हील नहीं था. Beside the second tire he had changed had been replaced by one that was smooth as my bald head. Besides इसके जबकि वो besides सेकंड टायर जब उसने सेकंड टायर बदला था तो इतनी आसानी से बदला था जैसे कि मेरा ना वो बेल्ट मतलब होता है गंजा तो जैसे मेरा गंजा सर इतना ही स्मूथली उसने बदल दिया था वो इतना स्मूथ हो गया था टायर. हॉर वॉज अ ग्रिम मिजरेबल प्लेस. ग्रिम का मतलब होता है बहुत ही परेशान सी उदास सी जगह थी मिजरेबल सी जगह है वो कह रहे कि बिल्कुल भी खुशी नहीं हो जहाँ पर ना बड़ी दुख भरी उदास सी जगह थी. और देयर वाज नो वेजिटेशन वहाँ पर ना कोई ग्रीनरी भी नहीं है व्हाट्स एवर जस्ट डस्ट एंड रॉक्स. और क्या है बस डस्ट है यानी कि मिट्टी है और रॉक्स यानी कि चट्टाने हैं. लिबरली scattered with years of accumulated refuse. और ऐसा लग रहा है जैसे सालों से ना उसको छोड़ दिया गया किसी ने निग्लेक्ट कर दिया है. Which was unfortunate given that the town set on the shore of Lake Mansarovar. और वो कह रहे थे ये बड़ा ना अभाग्यपूर्ण है ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो जगह लेक मानसरोवर के यानी कि मानसरोवर झील कहाँ है वो कैलाश पर्वत के एकदम पास है. तो इसको भी बहुत पवित्र माना जाता है बुद्धिस्ट हो हिंदू हो सभी इस मानसरोवर झील को बहुत मानते हैं. और वो बता रहे हैं कि इस झील के इतने पास होने पर भी इस जगह का इतना इतना अनडेवलप होना इतना इतना अजीब दिखना इतना परेशान जगह दिखना इसका सुंदर ना होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है. तिब्बत मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर और मानसरोवर क्या है तिब्बत का एक बहुत ही पूजनीय होली स्थल है पानी का. एंशियंट हिंदू प्राचीन हिंदू एंड बुद्धिस्ट और जो बुद्धिस्ट cosmology pinpoints Mansarovar as the source of four great Indian rivers the Indus, the Ganges, the Satluj, and the Brahmaputra. जो प्राचीन हिंदू हैं और जो बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी मीन्स जो बुद्धिस्ट एक इस तरह का कॉस्मोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें फिजिक्स और यूनिवर्स को स्टडी करने के बारे में सोचा स्टडी किया जाता है. तो वो ये बता रहे हैं कि वो बताते हैं कि इसी मानसरोवर से ना चार बड़ी नदियां जो इंडिया की भारत की हैं वो निकली हैं जैसे कि इंडस यानी कि सिंध गंगा सतलज और ब्रह्मपुत्र. Actually, only the Satluj flows from the lake, but the headwaters of the others are rise nearby on the flanks of Mount Kailash. वो
कह रहे हैं कि वास्तविकता में तो सिर्फ सतलज ही इस लेक से निकली है, बाकी सभी जो उद्गम स्थल है वो माउंट कैलाश से फ्लैंक्स मतलब छोटी छोटी धाराएं निकल रही है. We were within striking distance of the great mountain and I was eager to forge ahead. और अब हम बिल्कुल स्ट्राइकिंग डिस्टेंस बहुत ही पास आ गए थे माउंट के यानी कि पहाड़ के, और मैं बहुत उत्सुक था उस तक जाने के लिए. बट आई हैड टू वेट, पर मुझे इंतजार करना पड़ा था. सीतन told me to go and drink some tea in Horse Only Cafe, which, like all the other buildings in town, सीता ने मुझे कहा कि आप जाइए और होर के उस पुराने कैफे में, इकलौते कैफे में जाकर चाय पीजिए, जो कि वहाँ की और बिल्डिंग्स की तरह था. वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बेडली पेंटेड कंक्रीट, मतलब बुरी तरह के कंक्रीट से बना हुआ और बहुत ही गंदा पेंटेड था. और उसमें हैड 3 ब्रोकन विंडोज, 3 टूटी हुई खिड़कियाँ थी. The good view of the lake through one of them helped to compensate for the draught. Draught बोलते हैं जो ठंडी हवा अंदर की ओर आती है कमरे में. तो उस जो उन टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर की ओर आ रही थी, उससे बस मुझे एक चीज आराम दे रही थी कि उनमें से एक खिड़की से उस उन्हें लेक का जो है व्यू दिख रहा था, तो उन्हें बाकी चीजें इतनी महसूस नहीं हो रही थी, वो व्यू उनको इतना अच्छा लग रहा था. थैंक यू गाइस, दिस इज जस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज ये जो वीडियो था बहुत लॉन्ग हो रहा था, तो मैंने इसे 2 पार्ट में बनाया है. और आप इसका दूसरा पार्ट भी ज़रूर पढ़िए, तभी इसे कंप्लीट कर पाएंगे चैप्टर को. आपके कोई भी सजेशंस हो और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, please discuss with me, write in comments, like and share, so that your likes, your sharing actually, subscriptions actually motivate us to make more videos for you guys. Thank you, student. Thank you so much.